ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਉ ਸੁਹਾਵੇ ਨਾ ਤਉ ਦਰ ਦੁਲਦੇ, ਸੀਸ ਸੁਹਾਵਾ ਚਰਣੇ। ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਫਿਰ ਭਟਕਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਚਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ, ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ, ਪੈਰ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਗਰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਗਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ तो रस्ते ਨੂੰ अबूर करना औखा है, रस्ते ਨੂੰ तय करना औखा है, रस्ते ते चलना बड़ा औखा है। तो इस तरह धार्मिक जगत विच ज्ञान ਨੂੰ ਤੇ दृष्टि ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, नेत्र ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਪੈਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, भावना ਨੂੰ पैर ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। श्रद्धा ही नहीं, भावना ही नहीं, भरोसा ही नहीं, चलना औखा है, कठिन है। ज्ञान ही नहीं, समझ ही नहीं, पता ही नहीं रस्ते का, दिखाई ही नहीं देता, मंजिल दिखाई नहीं देती, तां भी चलना बड़ा औखा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, ऐसे अंधे दुनिया विच घट ने जिन्हां नूं बाहर दे रस्ते नहीं दिखाई देंदे, सड़कां ना दिखाई देंदियां। ऐसे अंधियां दी तादाद बहुत थोड़ी है। और जिन्हां नूं प्रभु दा मार्ग नहीं दिखाई देंदा, ऐसे अंधियां नाल संसार भरिया पिया, ऐसे अंधियां नाल जगत भरिया पिया। ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਹੀ नहीं सकते, ऐसे लंगड़े, ऐसे पैरां तो हीणे मनुख जगत विच बहुत थोड़े ने, बहुत थोड़े ने, गिणती दे हिसाब नाल थोड़े ने, औसतन थोड़े ने, चल नहीं सकते। इस तरह के लंगड़े बहुत थोड़े ने। और जिन्हां कोल शरधा ही कोई नहीं, भावना ही कोई नहीं, भरोसा ही कोई नहीं, ऐसे लंगड़ियां नाल संसार भरिया पिया, भरिया पिया। तो साहिब कहने रोला टुंडा अंधला क्यों गल लगे थारे। ये अंधा, ये लंगड़ा, ये टुंडा किस तरह पहुंचे परमात्मा तक, किवें पहुंचे। सतगुरु कहंदे ने मैनूं धार्मिक जगत विच मनुख अंगहीन दिखाई देंदे, अंगहीन दिखाई देता, अंग ही कोई नहीं, ना अखा। भाई साहब भाई गुरदास जी तो इत्थे तक कहते हैं अंग अंगहीन। ऐसा नहीं कि एक अंग देखबे को ना दृष्ट, ना दर्श दिखाए देखो, कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाई है। देख सकिए अखा ही कोई नहीं, दृष्टि कोई नहीं। और जिहड़ी दृष्टि है, जिहड़ियां अखां हैगियां ने, संसार दिखाई देंदा है, निरंकार नहीं। पदार्थ दिखाई देंदा है, परमात्मा नहीं। परिवार दिखाई देंदा है, निरंकार नहीं। देखबे को ना दृष्ट, ना दर्श दिखाए देखो, कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाइए। कहबे को ना सुरत, ना सरवन सुनबे को,
कैसे प्रिय निध गुण सुनिए सुनाइए। कुछ बोल सकां कुछ कह सकां जबान ही कोई नहीं, गूंगा। हे प्रभु तेरे बोल सुन सकां कानी कोई नहीं, बहरा। भाई साहब भाई गुरदास जी, बहरा। हे गुरु तेरे बोल सुन सकां मेरे कोल ਕੰਨ नहीं ने, और ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ। मैं संसार ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ। मैं ਵਿਖੇ ਨਾਦ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਗੀਤ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੱਕ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਕਾ ਕਿਹਾ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਦਰਗਾਹ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਾ ਕਿਹਾ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਸਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਭਰਮਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। 10 ਮਿੰਟ ਕਿਧਰੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੈਠਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2-2 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਹਾਰ ਦੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਸਕਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਦੇ ਕੋ ਨਾ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਰਵਨ ਸੁਨਵੇ ਕੋ, कैसे प्रिय निध गुण सुनिए सुनाइए। मन में गुरमत गुरमत में ना मन, नेचल होए मन उन मन लेवल आई है। हे प्रभु जो गुरमत है, जो तेरे विचार ने, वो मेरा मन कबूल नहीं करता, नहीं मनता। कहता कह पिया मन नहीं मनता। और जिहड़े मेरे विचार ने, जो मेरी सोचनी, वो तैनू कबूल नहीं, वो तैनू परवान नहीं। बड़ी कीमती गल कह दी है भाई गुरदास। जो तेरी सोचनी है हे गुरु, ये मैनू कबूल नहीं, मैं नहीं मनता। जो मेरी सोचनी है वो तैनू कबूल नहीं। तो रिश्ता किस तरह जुड़े, संबंध किवें जुड़े? मन में गुरमत गुरमत में ना मन, नेचल होए कैसे उन मन लेवलाई है। जो गुरु दी मत है, जो गुरु दी सोचनी है, जो गुरु दे विचार ने, मन नहीं कबूल करता। और जो मन दी मत है, जो मेरी सोचनी है, जो मेरे विचार ने, वो गुरु नूं कबूल नहीं। तो संबंध किस तरह जुड़े? विचारां दी सांझ ही नहीं बनती। गुरु दे विचार मैनू कबूल नहीं, मेरे विचार गुरु को कबूल नहीं। मेरे विचारां नाल गुरु सहमत नहीं है, और गुरु के विचारां नाल मैं सहमत नहीं हाँ। भाई साहब भाई गुरदास जी, मन में गुरमत गुरमत में न मन, नेचल होए कैसे उन मन लेवलाइए। अंग अंग भंग रंग रूप कुलहीन दीन, कैसे वो नायक की नायका कहाइए। हे प्रभु जगत विच कोई टुंडा होवेगा, कोई लंगड़ा होवेगा, कोई अंधा होवेगा, कोई बहरा होवेगा, कोई गूंगा होवेगा, पर भाई गुरदास इत्थे कमाल कर देन, मैं ते अंधा भी हाँ, बहरा भी हाँ, गूंगा भी हाँ, टुंडा भी हाँ, लंगड़ा भी हाँ।
अंग अंग भंग रंग रूप कुलहीन दीन, कैसे बहु नायक की नायका कहाई। किवें मैं तैनू कबूल हो सकदा। अंग अंग भंग, सारे अंग टुटे पए ने, भंग ने, ना पैर ना हथ, ना अखां ना कन, ना जबान। अंग अंग भंग रंग रूप कुलहीन दीन, कैसे बहु नायक की नायका कहाई। सारे अंगां दी अपनी एक महानता है, पर रस्ते नूं वेखण वास्ते अखां चाहीदियां, रस्ते ते चलण वास्ते पैर चाहिए। कुछ धार्मिक विद्वान ऐसा भी कहते हैं, अगर पैर हैगे ने, शरदा हैगी है, भावना हैगी है, ज्ञान नहीं है, वध तो वध भटकेगा, और भटकदे भी कई दफा पहुंच जाते हैं। चलते ते पए किसी दिन भटक भटक के भी पहुंच जाएंगे। हुणे थानू भाई साहब भाई सुरजीत सिंह जी, जो बहुत सोहणे आलम ने, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की संपादना बारे दस रहे सन। भगत सूरदास ये बिंद्राबन तो चलिया सी, इस शौक नाल मेरे बोल भी गुरु ग्रंथ साहब दे दर्ज होवन। ਉਹਦੀ एक पंक्ति दर्ज है सारंग राग ਵਿੱਚ। अंधा सी, नेत्रहीन, ਹੁਣ बिंद्राबन तो अमृतसर तक पहुंचे किवें? पर उसका हौसला देखो, लाठी लैके चल पिया, पुछदा ही पुछदा। किधरे भटक जांदा सी, लोकी रस्ते ते पा देंदे सन। ਇਹ मतवातर दिन भर चलदा सी, रात ਨੂੰ कदी किसी रुख तले, कदी किसी पिंड कट लैंदा सी। भटकदा भटकदा 3.5 महीनਿਆਂ ਦੇ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ पहुंच गया। ਅੱਖਾਂ कोई नहीं, पहुंच गया। सतगुरु के चरणों से मत्था टेकिया, मस्तक छुपिया नहीं रहिंदा है, भगत है, भावना नाल भरिया होया। सतगुरु ने मौका दिता, सुना भाई। पर ये संगीतकार भी सी, राग दीआं बारीकियां नूं भी जानदा सी। जद भी किसी दे अंदर परमात्मा प्रगट भी हुंदा है, गीत बन के आउंदा है, संगीत बन के आउंदा है, एवें नहीं गीता प्रगट होंदी। धन गुरु नानक दे अंदरों अकाल पुरख प्रगट होंदे ने, गीत बन के, संगीत बन के। वकत दा राग गांदे ने गुरु नानक, वकत दी राग नहीं गांदे। मरदानिया रबाब छेड़ बाणी आई है, बाणी मरदाने ते नहीं आई, गुरु नानक ते आई है। गाउंदे गुरु नानक आप ने, मरदाना सिर्फ रबाब वजांदा, साज वजांदा है। वकत दा राग गांदे ने, वकत दी रागनी गांदे ने गुरु नानक। कदी सोरठ पे गांदे ने, कदी मलार पे गांदे ने, कदी भैरव गा रहे ने, कदी मारू गा रहे ने, कदी मांझ गा रहे ने, कदी आसा गा रहे ने, कदी गौड़ी गा रहे ने, कदी सही राग गा रहे ने। वकत दा राग गांदे ने, वकत दी रागनी गांदे ने। कीर्तन सुनना होवे ते फिर मरदाने तो सुन लैंदे, पर जद बाणी नाजल होंदी है तो गुरु नानक नूं नाजल होंदी है, और वो बाणी नाजल होंदी है गीत बन के, संगीत बन के। भावें चौक दे च बैठ के रविदास सारा दिन जुतियां ही गंढदा है, पर परमात्मा जद उसके हिरदे चों भी प्रगट होंदा है गीत बन के, संगीत बन के। रविदास की सारी बाणी गीत दे च है, संगीत दे च है। हैरानगी होंदी, गंढदा ते जुतियां इनू संगीत कित्थों आ गया? भावें दिन भर खड्डी ते बैठ के कबीर कपड़े ही बुनदा है, पर जब रब्बी कलाम अंदरों प्रगट होंदा है गीत बन के, संगीत बन के। कबीर दी सारी बाणी गीत दे च है, संगीत दे च है। सारा दिन भावें कपड़ियां नूं ही छिंबदा है, नाम दे छिंब है। लोकी शूदर कहंदे ने, मंदिर तो ते मार मार के कढ़ दिता गया सी। जिस मंदिर चों मार मार के कढ़ दिता गया सी, दास ने वो मंदिर देखिया है। हजूर साहब तो सिर्फ 40 मील की दूरी पे उस कस्बे का नाम है औंढा, जिथे मंदिर है।
बड़ा बुरी तरह मारिया इसनों ब्राह्मणा ने। तू शूदर है ते मंदिर विच किस तरह आ गया, क्यों आया? शूदर दी असीं छाया नहीं लेंदे, तू छाया नाल मंदिर भ्रष्ट कीता, सारा मंदिर सानू धोना पेगा। तू क्यों आ गया, किस तरह आ गया? मारे। और गिला मिठा जिया करदा है नामदेव, सूद सूद कर मार उठायो, कहां करो बाप बीठला। हे मेरे बाप, हे मेरे बिठल, मैं की करा, मैनू शूदर शूदर आख के मारिया इन्होंने। शूदर शूदर आख के मैनू धक्के दिते ने इन्होंने। पर ये मंदिर के पिछे जा बैठा, लंबी चौड़ी गाथा ना अर्ज करा, पिछे जा बैठा। पर गजब दी गल, फेर दिया नामे को देवरा पंडियन को पिछवाड़ना। मंदिर का दरवाजा मूर्तियां का मुंह नामदेव की तरफ हो गया। अजे तक मंदिर उसे तरह ही है, अजे तक। गालबन में थानू 35 साल पुरानी गल दसा। कटक दे मैं किधरे कह बैठा, गुरु नानक देव जी ने हाजियां दे मन फिरा दिते, मक्का नहीं फिरिया। 35 साल पुरानी गल कर दो। तर्क बुद्धि मेरी बहुत ज्यादा सी, गल गल ते तर्क करना ये मेरी आदत सी। मैं कहा हाजियां दे मन घुमा दिते, दिमाग घुमा दिते, सोचनी फेर दी। बिल्डिंगां नहीं घुमदियां होंदियां, पत्थर दा मक्का नहीं घुमदा हुंदा। उन्हां दिनां च दास बाबा बलवंत सिंह कोल गुरबाणी व्याकरण पढ़दा सी, वो भी बैठे सन। जद कमरे च आए, जिंदगी च मैं पहली दफा ताड़ना ते एक गाल भी सुनी, नहीं तो मैनू अज तक किसी स्कूल दे मास्टर ने भी न ताड़ना कीती सी न मारिया। ते मां बाप दा एक लोता लड़का होण करके उन मैं लाड नाल भरिया, लेकिन पहली दफा कड़कदी हुई गाल भी सुनी। आख्या मूर्ख है तू, की आख्या? रहिंदा मेरे नाल है, पढ़दा मेरे कोल है, की आख्या? मैं आख्या मैं की आख्या? तू ये आख्या मक्का नहीं घुमिया। तो मैनू कहने लगे फिर भाई गुरदास गलत पे कहंदे ने, फिर फिरिया मक्का कला दिखाई। तू ठीक है, भाई गुरदास गलत है। मैं कहा भाई गुरदास के कहने का भी यही अर्थ होगा, दिमाग घुमा देता। तीजे दिन उन्होंने कथा की समाप्ति की थी, कहने लगे हजूर साहब चलना है। हजूर साहब का कोई प्रोग्राम नहीं सी उदों। उतों वैद्यनाथ धाम जाना सी, फिर कलकत्ते जाना सी, फिर पटना साहब पहुंचना सी। अचानक कहने लगे हजूर साहब जाना। मैं ठीक है। औरंगाबाद उतरे, उतों टैक्सी पकड़ी, हजूर साहब ले। हजूर साहब 40 मील रहिंदा, रस्ते दे कस्बा पैंदा औंडा। ड्राइवर नूं कहण लगे इधर मुड़। मैं क्या बाबा जी हजूर साहब तो उस पासे सीधा रोड ते हो जा रहे हैं। कहने लगा तेरी अकल फिरानी है, इस वास्ते आया। औंडे गए, मंदिर देखा। कहने लगे हुण देख इस मंदिर नूं देख, ये रबड़ का बनया होया कि पत्थर का बनया है मंदिर? ये खिडौना है कि असली मंदिर है? पहाड़ नूं तराश के बनाया गया, फिरिया होया है कि नहीं? मंदिर का मुंह दूजे पासे, मूर्तियां का मुंह दूजे पासे। और ब्राह्मण आप साथी सुनाते हैं। फिर जिथे बाहर बैठ के कीर्तन किया सी नामदेव ने, उत्थे हुण थड़ा भी बना दिता है। हुण ब्राह्मण मनदे ने, हुण ब्राह्मण भी उस थड़े नूं मत्था टेकदे। देख के मैं फिर भी बाबे उन्होंने ये आखी अकल तो अगे की गल है। मैनू कहन लगे अकल तो अगे की गल है तो सच, पर तू बेअकली नाल कह रहे हैं। ये भी अजे तक मैनू याद है। ये गल तो ठीक है कि अकल तो अगे की गल है, परमात्मा अकल तो अगे की गल है, प्रभु का रस अकल तो अगे की गल है, परमात्मा की होंद
अकल तो अगे की गल है, पर जिहड़ा तू कह रहे हैं बेअकली नाल कह रहे, तू अकल तो अगे नहीं गया। अगर अकल तो अगे चला जाता तो शायद खेड बन जाती, तेरी गल समझ च आ जाती। फिर जब मैं भाई नंदलाल नूं पढ़ना शुरू किया तो मैं हैरान होया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक दिन प्रसन्नता के घर दे आए, बख्शिश के घर दे आए तो कहन लगे, नंदलाल बहुत खुश हाँ तेरे ते, तू बहुत प्यारा लगदा है, बहुत प्यारा लगदा। अज मैनू होर खुशी होवेगी, तैनू कुछ दें, तैनू कुछ दें जो बहुत प्यारा होवे, बहुत प्यारा होवे, देण नूं जी करदा है। जिहदे नाल बड़ी करड़ी दुश्मनी होवे उहदा ते कुछ खो लैण नूं जी करदा है। जिस नाल करड़ी दुश्मनी होवे जी करदा है इहदा सुख खो लईए, इहदी इज्जत लुट लईए, इहदा मान सन्मान खो लईए, मौका लग जाए इहदी जिंद जान खो लईए। दुश्मनी है। बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, देण नूं जी करदा है। सुख दे दईए, आराम दे दईए, सन्मान दे दईए, किधरे लोड़ पै जाए तो अपनी जिंद जान दे दईए। सतगुरु कहने तो मैनू बहुत प्यारा लगता, बहुत प्यारा लगता। तेनू अज मैं कुछ देना है, क्योंकि दे के मैनू खुशी मिलेगी। पर ऐसा ना होवे मैं जिहड़ा तैनू देवां वो तेरी लोड़ ना होवे, तेरी मंग ना होवे। इस वास्ते तू मंग ते मैं दें, जो तू मंगे वो मैं देना। पता है नंदलाल ने की आखे, महाराज इस दर ते पहले मंगता ही आया सी, मंगा नाल भरिया होया, हर वक्त मंगा ही सन, हर वक्त कामनावां ही सन। बादशाह जद मैं इस दर ते आया सी मंगते दी तरह आया सी, मंगा सारियां खत्म हो गईयां, अज मैं बादशाह हो गया, अज आप कहंदे हो मंग लो, अज आप कहंदे हो मंग लो। गदाए कूवे तोरा मेले बादशाही नेस्त, हवाए सल्तनत हो व जाओ के कज कुलाही नेस्त। ऐ मेरे बादशाह जिहड़ा एक दफा थोड़ी गली चों लंघ जाए वो दो जहाना की बादशाही ठुकरा देना है। तो मैं ते दर मल के बैठा, मैनू किहड़ी किस चीज की कमी, मैं ते बादशाह बनया बैठा थोड़ी संगत करके, थोड़े चरणों च रहन करके। अज आप कहंदे हो कुछ मंग लो, कुछ मंग रही नहीं। अमीर खुसरो इसनूं इंज कहंदे ने, सब कुछ खुदा से मांग लिया, खुदा को मांग कर उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। दुआ कहंदे ने अरदास नूं। अमीर खुसरो कहंदे खुदा हुण ते मेरे हाथ ही नहीं उठते कि मैं अरदास करा ते तेरे कोल कुछ मंगा। जिस दिन दा तैनू मंगया सारियां ही मंगा मिट गई। सब कुछ खुदा से मांग लिया, खुदा को मांग कर उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। इस तरह की अरदास करन तो बाद हुण होर अरदास करन नूं जी नहीं करता, होर कुछ मंगण नूं जी नहीं करता। पता है सतगुरां ने की आख्या, नंद लाल फिर साडी खुशी ते यही है तैनू कुछ देईए। चल साडी खुशी लई मंग ले, साडा मन खुश हो जाए। माता प्रीत करे पुत खाए, मां नहीं खा रही पुत खा रहा है, पर मां खुश हो रही है, खांदा ते पुत पे है। माता प्रीत करे पुत खाए, खुश ते पुत्र हो रहे हैं, खांदा ते पुत्र पे है, स्वाद ते पुत्र नूं आ रहा है, पर खुश मां हो रही है। सिख की खुशी कई दफा गुरु की खुशी बन जाती है। नंदलाल अज तैनू दे के सानू खुशी मिलेगी, साडी खुशी लई मंग ले, कुछ मंग ले।
बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। भाई साहब ने अपनियां नज़मां विच जो कुछ मंगे है वो मैं थोड़े सामने रखा। या इलाही ई दिलमरा शौक दे, जे देना है ते इस दिल दे च रब्बी प्यार दे, रब्बी शौक दे, शरदा दे, भावना दे। या इलाही ई दिलमरा शौक दे, दरगलू अज बंदगीरा तौक दे। मुगल काल विच ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਟਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ ਦੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਪਟੇ ਨੂੰ ਤੌਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੌਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਤੌਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ इतने तौक बनाने बड़े औखे, क्योंकि लखां दी फौज उसनूं रखनी पई सी, सारे हिंदुस्तान का बादशाह हो गया सी। तो पता की करदा सी, इत्थे मोंडे ते दाग ला दिंदा सी, जिवें पशुआं नूं दाग लाए जांदे ने अग नाल। कबीर ने उसका जिक्र भी किया, दागे होए सो रण में जूझे, बिन दागे भग जाए। दाग दिते जांदे सन ते दागे होए नूं देख के कह दिता जांदा सी गुलाम है, विके होया गुलाम है। उस तो पहले गले दे तौक पा दिता जांदा सी, पटा पा दिता जांदा सी, गुलाम है, विके होया, किसी दा खरीदे होया। इतनी ये आम वबा सी ते इतनी ये आम प्रथा सी। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाम सुभाव। हे प्रभु मैं तेरा खरीदे होया गुलाम, मैं तेरा गुलाम। लाला गुलाम नूं कहंदे। परशियन दे लाले दे अर्थ ने गुलाम। भारत नूं जद गुलाम किया तो अफगानी लोगों ने भारतीयों नूं लाला जी कहना शुरू किया, लाला लाला लाला, गुलाम गुलाम गुलाम। उदों तो उन्होंने गुलाम कहना शुरू किया क्योंकि गुलाम बना लिया सी, पर गुलामी इतनी कबूल हो गई, इतनी कबूल हो गई, हुण अपने आप नूं लाला जी कही जांदे, सारे लाला जी लाला। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते मुल खरीदी लाला गोला, हे प्रभु मैं तेरा खरीदे होया, तेरा मुल खरीदे होया गुलाम। बड़ा मैं भागा वाला तेरा गुलाम, किसी होर दा नहीं, तेरा गुलाम। कहो कबीर गुलाम घर का, जे आए भावे मार भगत कबीर। हे प्रभु हुण तेरी मर्जी, असी ते तेरे गुलाम, तेरे गुलाम। मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाम सुभागा। गुर की बचनी हाट बिकाना, जितलाया तितलागा। असी ते गुरु दी दुकान ते अपने आप नूं वेच दिता है, सतगुरु इंज कहंदे वेच दिता है, खरीदे गए गुलाम। भाई साहब भाई नंद लाल कहंदे ने या इलाही ई दिल मरा शौक दे। ऐ मेरे इलाही, ऐ मेरे गुरु, देना है ते शौक दे, शरदा दे, प्यार दे। या इलाही ई दिलमरा शौक दे, दरगलू अज बंदगीरा तौक दे। मेरे गले विच बंदगी दा पट्टा पा दे, गुलाम बना दे। दरगलू अज बंदगीरा तौक दे। अगां चल के हथ जोड़ के भाई साहब भाई नंद लाल कहंदे ने या इलाही चश्मे बीना ए बेदे। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਖ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਕਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਮੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਮੈਲੀਆਂ।
और अखां दी महल बड़ी दूर तक जाती है। अखां दी महल सिर्फ मनोविग्यानक या थोड़े जिहा संत भगतां नूं दिखाई देती है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने देख लिया सी, ये जो सारा दिन पानी पिलांदा है, सेवा करता है, ये सेवक नहीं है, भगत नहीं है, ठग है। यदि अखां दस रही सज्जन ठग है, सिर्फ दिखाई देंदा सज्जन, सिर्फ नाम इसका सज्जन है, ये ठग है। यदि अखां दसदियां पियां, यदि नजरां दसदियां पियां, की होया? हत्थां नाल सेवा करदा पिया, अखां मैलियां मेलियां नजरां नाल सेवा करदे मैं गुरुद्वारियां च भी देखे न। गुस्ताखी माफ औखे ना मेलियां अखां वाले मैं मंदिरां विच भी सेवा करदे हुए देखे। अखां ते मैलियां ने, उन सेवादार ने, अखां ते मैलियां ने। इन्हां अखां नूं मनुख इतना संभाल के नहीं रखता कि मैलियां ना हो। हाथ भी धो लेंदा, पैर भी धो लेंदा, अखां भी साफ कर। इन्नियां मैलियां, इतनियां मैलियां। सियाणे कह देंदे ने दी अख मैली है, ठीक नहीं है। सतगुरु नानक देव जी महाराज इस नूं इंज कहंदे ने, दृष्ट बिकारी बंधन बांधे हऊं तां के बल जा। ਜਿਹੜਾ अपनी अखां नूं धो लैंदा है, निर्मल कर लैंदा है, सब कुछ साफ दिखाई देंदा है, मैं उस तो सदके जाना, कुर्बान जाना। गुरु नानक देव जी, मैं उस तो बलहार नहीं जाना। पैर लमकाई गए ना। भाई साहब भाई नंद लाल कहंदे ने, या इलाही चश्मे बीना ए विदे, ऐ मेरे इलाही ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ परमात्मा ਨੂੰ देख ਸਕਦੀਆਂ। फिर दूसरी पंक्ति पे कमाल कर देता है, या इलाही चश्मे बीना ए विदे, दर सरम अज इश्क सौदा ए विदे। इस सिर दे ਉਹ इश्क दे, ਉਹ शरदा दे, ਉਹ भावना दे कि सारे कह दिन नंद लाल पागल है, पागल है, पागल है। ऐ मेरे गुरुदेव अजे ते लोकी मैनू ज्ञानी कहंदे ने, विद्वान कहंदे ने, कवि कहंदे ने, शायर कहंदे ने, आलम फाजिल कहंदे ने। मैनू अजे किसी ने पागल कहना शुरू नहीं किया। भगत पागलों जैसे दिखाई देंदे ने, ये भी मैं अर्ज करा आम बंदियां नूं। क्यों? उन्हां दा रहन सहन, तर्जे जिंदगी जगत नाल तालमेल नहीं खांदी। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया, ते जिन्हां दा जोड़ आ जांदा है, भगत कहण दी लोड़ भी की है, संत कहण दी लोड़ भी की है, फकीर कहण दी लोड़ भी की है। खास दृष्टि होवे ते पता चल जांदा इन्हां दी तर्जे जिंदगी मेल नहीं खांदी। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। संसार विच रहिंदे होए संसारियां दी तरह दिखाई देंदे होया संसारी नहीं आउंदे। एक गाथा है पंचदशी विच, एक बौद्ध भिक्षु जो अठे पैर ध्यान साधना च रहिंदा सी, रस्ते सड़क च बैठा, आंदे जांदे जो लोकी उसनूं भिक्षा दे देंदे सन, उस नाल उसदी उपजीविका चलदी सी। वक्त दा राजा भी रोज रथ ते बैठ के लंघदा सी, राज महलां तो राज सभा विच जांदा सी, उसे ही रस्ते तो। मन विच राजे दे ख्याल आया, भजनीक बड़ा है, लिवलीन रहिंदा है, हर वक्त सुरत दी एकाग्रता विच रहिंदा है। इनू अपने महलां च बुला लिया, दावत दे दें, कुछ दिन साडे महलां च रवे, 2-4 दिन, 8-10 दिन। ये मन विच सोच लिया बई राज सभा तो वापसी ते आंदियां प्रार्थना करांगा, कवांगा। वापस आ रहे, झुग्गी कोल इसने रथ रुकवाया, उतरे, हाथ जोड़ के आखे, संत जी कुछ दिन साडे ग्रह दे च रहो, कुछ दिन। वो साधु एकदम खड़ा हो गया, कहना चलो। राजे दी अद्धी शरदा टुट गई, कहंदा लै
ਕਿਤੇ ਨਾਜ਼ ਨਖਰੇ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਜ਼ ਨਖਰੇ ਕਰੇ ਨਾ ਅਗਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਖਰੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾਲ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਬਿਖਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਿਖਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਉਡੀਕੇ ਸੀ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਚਲੀਏ ਮਹਿਲਾਂ ਚ। ਇਹ ਤੇ ਇਸੇ ਉਡੀਕੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਰਾਜਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਵਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਤੋਹੀਨ ਸਮਝੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਧਾ ਉਸਦੀ ਅੱਧੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਰੱਥ ਚ, ਮਹਿਲਾਂ ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਕਵਾਨ ਉਹ ਖੁਦ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹੀ ਖਾਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਸਤਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਿਲਵਾਏ ਸਨ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਨ ਲੈ ਤੂੰ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਲਏ। ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਹਿਨ ਲਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਤਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਪਕਵਾਨ, ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਰੋਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਰਾਜਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਾ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੱਥ ਜੋੜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨਣ, ਜੋ ਮੈਂ ਖਾਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਜੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਸਹੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਕੇ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਬੜਾ ਉਤਾਵਲਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਦੱਸੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਚਲੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਵਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ, 8-10 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਜਵਾੜਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਪਲਵਸਤੂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। 30-40 ਪਿੰਡ ਸਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਾਲਬਨ 3-4 ਫਰਲਾਂਗ ਜਦ ਚਲੇ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪੂਰਾ ਮੀਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਤਨਾ ਚਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅੱਗੇ। 2 ਮੀਲ ਦੀ ਵਾਟ ਤੈਅ ਹੋਈ, ਇਤਨਾ ਕਦੀ ਚਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਜਾ। ਰੱਥ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਸੰਤ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੋਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਟੇਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਪਾਠ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਪਾਠ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੱਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
संत कहने लगा तेरे ते मेरे च यही फर्क है, तेरे महल पिछे ने मेरे अगे ने, तेरा सब कुछ पिछे है, मेरा सब कुछ अगे है। जिथों तेरा सब कुछ खत्म होता है उसे जगह तो मेरा सब कुछ शुरू होता है। जा तेरे महल छड़े कपड़े उतार के परे सुट दिते, आप चले अगे, तो तेरे मेरे च ही फर्क। तू अगे नहीं आ सकता, पिछे मुड़ सकता है, असी पिछे मुड़दे ही नहीं आते, अगां जाते आते। अगां को तरांग पिछा फेर ना मोड़ड़ा, नानक सिंज इहा वार, बहुड़ ना होवी जन्मड़ा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं क्यों पिछे सुरत नूं मोड़दा है? बंदा आ गया गुरुद्वारे, सुरत पिछे कारोबार जा रही है, कम से कम 1 घंटे ਲਈ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਤੇ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਕੋ ਤਰਾਂਗ ਪਿੱਛਾ ਫੇਰ ਨਾ ਮੋੜੜਾ, ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੱਗੇ। ਅਗਾਂਹ ਕੋ ਤਰਾਂਗ ਪਿੱਛਾ ਫੇਰ ਨਾ ਮੋੜੜਾ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਜ ਇਹ ਆਵਾਰ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜਨਮੜਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, या इलाही चश्मे बीना ए बिदे, दर सरम अज इश्क सौदा ए बिदे। ओ प्यार दे, ओ इश्क दे, ओ भावना दे, ओ शरदा दे, कि एक दफा सारे कह दिन नंद लाल सुदाई हो गए, पागल हो गए। महाराज अजे ते लोकी मैनू कवि कहते ने, शायर कहते ने, विद्वान कहते ने, आलम फाजल कहते ने, पंडित कहते ने, महाविद्वान कहते ने। मैनू किसी ने पागल कहना नहीं शुरू किया। हैरानगी की गल, चोटी का सियाणा मनुख ये कह रहे हैं। इस दौर के श्रद्धालु होना बड़ा औखा हो गया। बहुते श्रद्धालु नूं लोकी पागल कहने लग पैंदे, बहुते श्रद्धालु नूं लोकी भोला कहने लग। औखा होना, निक्की निक्की गल ते श्रद्धा टुट जाती है बंदियां दी, बहुत छोटियां छोटियां गल्लां। हजारां दफा रब की कथा सुनी हो, गुरबाणी की विचार सुनी होवे, किते माड़ी जिहां शरधा बनती है, इक्को ही मनुख की किधरे 2 बोल अशरधा बारे सुन लईए, शरधा टुट जाती। की शरधा है मनुखों की? कुछ भी नहीं, कच्ची कंध ते खड़ी है। तो लवज बनी बनाई शरधा नूं तोड़ के रख देंदे। इत्थों ही पता चलता है मनुख कोल शरधा एवें कच्ची कंध वर्गी है, कलरी कंध वर्गी है, कुछ भी नहीं, माड़ा जिहा धक्का दिता ते गई। मैं फिर दोहरावां, इसका खुलासा मैं कल करने की कोशिश करांगा, समा हो गया। रस्ता वेखण वास्ते अखां चाहिए, दृष्टि चाहिए, रस्ते ते चलण वास्ते पैर चाहिए। दृष्टि ज्ञान है, समझ है, अकल है, शरधा पैर ने, भावना पैर है, प्यार पैर ने। पैंडा प्यार नाल तय हुंदा है, शरधा नाल तय हुंदा है, अकल नाल नहीं। अकल नाल पैंडा दिखाई देंदा है, मंजिल दिखाई देंदी है। हुण मैं फिर अर्ज करां, पैर नहीं ने, शरधा बिल्कुल नहीं है, भावना बिल्कुल नहीं है, प्यार बिल्कुल नहीं है। भावें चोटी का ज्ञानी होवे, उरार ही रह जाएगा, कुछ भी नहीं, हिरदा भी कठोर होगा, बड़ा कठोर होगा। 5000 साल तक ब्राह्मणा ने जो चोटी के विद्वान सन, शूद्रां लई मंदिरां दे दरवाजे बंद रखे। बड़ा चोटी का विद्वान काजी सी, सूबा सरहंद दे कोल, उसने बुलाया सी फैसला करने वास्ते मासूम बच्चियां दा। काजी का फितवा ते लाजमी सी, बगल दे कुरान, कुरान पूरी कंठ, हाफिज सी, अर्थबोध आउंदा सी, हदीसां पढ़ांदा सी, बड़ा विद्वान चोटी का, हथ दे तस्बीह। जब सूबा सरहंद ने यह आख्या, इस्लाम यह कहता है, मोहम्मद साहब यह कहते हैं कि तेरे हथों किसी नाबालग बच्चे का और औरत का खून जमीन ते नहीं डुलना चाहिए, खुदा माफ नहीं करेगा। तो वह नवाब काजी नूं कहंदा की करिए, की करिए, इन्हां बच्चियां दा की करिए।
ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਡੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਚਿਣ ਦੋ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਇਹ ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਬੜਾ ਪੰਡਿਤ, ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ। ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ, ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਕੋਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਫਿਲਾਸਫਰ, ਚਿੰਤਕ, ਬੁਲਾਰੇ, ਲਿਖਾਰੀ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਸਤਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪੈਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੇ ਭਟਕਦਾ ਭਟਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੂਝ ਸਮਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਭਾਵਨਾ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲਾਂਗਾ। 4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ 8 ਤੋਂ 9 ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪਰਸਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਦੀ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਪਾਵਨ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਪਾਵਨ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲੇਹੋ ਸਵੇ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਗੁਣ ਇਹ ਤੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਰਾਤ ਜਨਾਵਰ, ਏਕ ਬੈਰਾਗ ਬਿਨਾ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਦਾਨੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਜ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਾਤ ਜਿਹਦੇ ਚ ਲਾੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਾੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਰਾਤ ਦੇ ਕੀ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਬਰਾਤ, ਲਾੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੈਰਾਗ ਬਿਨਾ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਫਿੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਫਿੱਕਾ, ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਫਿੱਕਾ, ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਫਿੱਕੀ। ਦਾਨ ਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬੂ ਆਵੇਗੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧੀ ਜੋ ਹੈ ਝੋਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭਰਨ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰਨ। ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।